वेलकम टू स्टडी क्लास एट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डीएवी स्कूल के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Vasco da Gama landed at Calicut in 1498 and marked the beginning of the European era in the Indian history. By the 16th century, the Portuguese had established their colony in Goa. In the next century, India became a popular destination for a large number of European traders, adventurers and missionaries from England, Spain, France, Holland, etc. तो हमने इधर पहले पैरा में पढ़ा कि वेस्को डा गामा जो एक विजिटर थे, फॉरेन विजिटर, तो उन्होंने 1498 में कैलीकट में लैंड किया था। उधर ही से फिर यूरोपियन एरा का इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ और 16th सेंचुरी तक जो पोर्तुगीज़ थे वो अपना गोवा में अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लिए थे। और फिर बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स, एडवेंचरर्स, मिशनरीज इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड से आए इंडिया में। चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। The age of imperialism in India began with the weakening and eventually the disintegration of the Mughal Empire. The lack of strong central authority led to the emergence of many independent states that revolted against the weak successor of Aurangzeb. They were the states of Bengal, Awadh, Hyderabad and Mysore. The Sikhs, the Marathas, the Jats and the Rajputs also set up their own kingdoms, and the stage was set for Europeans to take advantage of this situation. तो जो इम्पेरियलिज्म का एज था वो कैसे स्टार्ट हुआ? जब औरंगजेब का डेथ हुआ, तो औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर के रूलर्स थे वो बहुत वीक थे और केपेबल नहीं थे रूल करने के लिए, इसलिए और जो सिख्स, मराठा, जट्स और राजपूत ये सब थे, उन्होंने अपना अलग अलग किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया था। तो ये यूरोपियंस के लिए सबसे अच्छा मौका था इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करने का। तो इसी सिचुएशन के एडवांटेज लेके उन्होंने इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा ट्रेडिंग कंपनीज, उसको पढ़ते हैं। Many European trading companies established their trading centers in coastal areas of India. The trading centers were called factories, the place where factors of official work. Some of the factories were fortified as a safeguard from the rival trading companies. They bought spices, cotton, textiles, indigo and saltpeter, raw material for making gunpowder at cheap rates from India and sold them in Europe and America at high prices. The huge profit margin led to a competition among the foreign trading companies. Eventually, the other trading companies had to go out to English and French companies who remained the main rivals in India. तो जो ट्रेडिंग कंपनी था, यूरोपियंस ने बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी एस्टैब्लिश किए थे इंडिया में। ट्रेडिंग सेंटर के इंडिया के जो कोस्टल एरिया थे वहाँ ट्रेडिंग सेंटर थे, वहाँ यूरोपियंस ने ट्रेडिंग कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। और यूरोपियन बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए थे जहाँ फैक्टर्स वर्क करते थे। फैक्ट्रीज वो जगह होता है जहाँ फैक्टर्स द प्लेस वेयर फैक्टर्स ऑफिशियल वर्क। और जो कोई फैक्ट्री थे वो बहुत सेफ फोर्टिफाइड थे, उन्हें बहुत सारे फोर्ट के द्वारा सेव किया गया था। और राइवल ट्रेडिंग कंपनीज भी थे बहुत सारे। They bought spices, cotton textiles, indigo and saltpeter at cheap rates from India and sold them in Europe and America at high price. तो जो spices, फिर इंडिगो और saltpeter, ये सब जो मटेरियल से यूरोपियंस इंडिया से लाके अमेरिका में हाई प्राइस में बेचते थे, यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि इंडिया में उन्हें कम प्राइस पर मिल जाता था और इसलिए वो अमेरिका और यूरोप में जाके ज़्यादा प्राइस में बेचते थे, इससे उनको प्रॉफिट होता था बहुत। Eventually the other trading companies had to go out to English and French companies who remained the main rivals in India. तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पढ़ते हैं। The history of the world has not witnessed a more amazing story than that of establishment of the British Empire in India. It was not the result of a deliberate effort but a series of episodes that finally led to political dominance of India by the East India Company. The East India Company set up trading posts in Surat and 3 presidential settlements at Fort William in Bengal, Fort St. George in Madras and the Bombay Castle. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था
वो एक ट्रेडिंग कंपनी था जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने इस्टेब्लिश किया था। उसका एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है क्योंकि वो एक ट्रेडिंग कंपनी था, लेकिन इंडिया के उस टाइम की सिचुएशन की वजह से उन्होंने जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी छीन लिया था इंडिया से। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सेव करने के लिए 3 पोस्ट बनाए गए थे, ट्रेडिंग पोस्ट, जो सूरत में थे, और प्रेसिडेंटल सेटलमेंट्स भी थे जैसे फोर्ट विलियम इन बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड बॉम्बे कैसल। ये अपने आप से वो फ्रेंडली रिलेशन उन्होंने इंडियन से, फ्रेंडली जो इंडियन के प्रिंस थे उससे फ्रेंडली रिलेशन उन्होंने अपना लिया था। वो बहुत ही फ्रेंड की तरह हो गए थे इंडियन रूलर्स के। और जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने इंग्लिश मिलिट्री को प्रोटेक्ट करके रखा था इंटरनल राइवलरी से। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, तो ब्रिटिश ने इस सिचुएशन का एडवांटेज लेके उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना लिया। और इसके कारण जो इंडियन थे प्रिंस, वो ब्रिटिश के हाथ में पपेट कर गए। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसके पहले हम अगर डूनो पार्ट है उसको चेक करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉयड अ प्रिविलेज पोजीशन with the English government and was granted special rights like trade monopolies, tax exemption, causing resistance among its competitors. How could the trading company become an imperial power? The real answer is that East India Company became an imperial power to protect its trading interests from other European traders. It began as a trading company, took over political control and became the ruler of entire India. The aim of the company was to gain monopoly of the entire trade in the East. The company came into conflict with other foreign traders and hence built up its own military and administrative departments. It became such a strong force that it took over the governments of Bengal, Madras and Bombay. Gradually, the trading company transformed into an auxiliary government and military power that ended only in 1858. तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्हें बहुत सारे राइट्स मिल चुके थे, ट्रेडिंग मोनोपोलीज, फिर टैक्स एक्सपेंटेशंस भी मिल गए थे। इसके वजह से भी उनके कॉम्पिटिटर्स जो थे उन्हें बहुत जलन होता था। और ईस्ट इंडिया था वो ट्रेडिंग कंपनी था, लेकिन वो इम्पेरियल पावर बन गया था क्योंकि उस टाइम जो इंडिया का सिनेरियो था अच्छा नहीं था और इंडियन प्रिंस तो उनमें यूनिटी नहीं थी। और कुछ इंडियन प्रिंस तो अपने देश के आदमी को मारने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उससे मिलिट्री लेते थे और उसके बदौलत उन्हें जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो सब दे देते थे। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि इंडिया का सिनेरियो अच्छा नहीं, तब उन्होंने ग्रेजुअली जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इंडिया को उनसे इंडियन प्रिंस से उसे छीन लिया और ये ऑक्सिलरी गवर्नमेंट बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये तब 1858 में ख़त्म हुआ था। तो अब आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, अब हम पार्ट 2 वीडियो में कार्नेटिक वॉर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।